जाएगी. So we have created 2 assignments on the cloud. One is a rubric assignment, another is the random assignment, random essay assignment, right? So I'm showing you one by one how are you going to evaluate these assignments. So first of all, I'm showing you random essay assignment. So this is the random essay assignment. I'm on a teacher part. मैं आपको अभी स्टूडेंट पार्ट भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से आपको स्टूडेंट्स के पार्ट पर स्टूडेंट सबमिट करेगा एंड देन यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट. सो बेसिकली जब आप असाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा. आपको दिख रहा है अटेम्प्ट्स 1. इसका मतलब आपके पास जो स्टूडेंट है उनमें से एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लिया है. सो नाउ आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स द स्टूडेंट. ये स्टूडेंट है जिसको 2 असाइनमेंट दिख रहे हैं. So first of all, rubric assignment submit कर रहे हैं हम. As a student rubric assignment submit कर रहा है. So the student will click on add submission. मैंने फाइल अपलोडिंग कंपलसरी करी हुई है. इट इज अप टू यू. कल मैंने सेटिंग्स बताई थी, आप उसको चाहे तो ऑप्शनल बना सकते हैं. सो फिलहाल मैं कोई टेस्ट फाइल अपलोड कर दे रही हूँ यहाँ पर. So suppose this is uploaded and save changes. So my submission is completed and you can see that your rubrics are shown to the students. The student who has submitted, he can see the rubric, right? Now I'm going to the teachers part. ये सब कुछ क्लाउड पे हो रहा है, so there is a possibility आपके local server पे ये चीजें आपको ना दिखाई पड़े. So today one student has also attempt. अच्छा random assignment open किया हुआ है. So the rubric assignment is submitted and you can see that there are 2 students in my class and both have submitted the assignment and one requires a grading. So I'll open the grade. So one by one the assignment of the students will be shown to me. So this is the student who has submitted the assignment. And one more thing, if the student has not submitted the assignment, you will see that not attempted. Right now the student has attempted, that is why it is showing that submitted for the grading. Now you can see that there are 3 buttons that we have created for the rubric are shown here. So I'm giving 10 points to the student. So just click on the step that you wish to give. So which means the 10 marks will be assigned to the student for this particular assignment. I hope it is clear. Green हो गया है 10 points पे अगर मैंने click किया. Suppose no, I wish to give 5 points. So I'll click on 5. Clear? Okay. Now save changes. Now if you wish to give the grade for another student, just change the student and the next student is shown here. If you wish to give the marks or change the marks, right now 5 marks are assigned to the student. I wish to change it. So I have given 10 marks to the student and save changes. I've changed the grades. Now there is a grade tab. There you can see the grades of the students that you have assigned. See, the rubric assignment is evaluated. Dr. Garima has got 5 marks and Garima Research has got 10 marks. Now in the similar way, let's evaluate the random assignment. So basically in the case of rubric, you will open the assignment, click on the button. Text box में marks enter करने की कोशिश मत करिएगा.
आपने जो बटन्स बनाए हैं रूब्रिक्स के, आपको उस पर क्लिक करना है. द बटन विल बिकम ग्रीन एंड यू जस्ट सेव द चेंजेस. ओके, सो देयर इज अ ट्रिक इन द रैंडम असाइनमेंट. इसको ध्यान से देखिएगा, स्पेशली अगर आप ओपन बुक एग्जाम वगैरह रैंडम असाइनमेंट पे क्लिक कर बनाते हैं तो. सो इट इज ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू अटेम्प्ट. अटेम्प्ट जो आ रहे हैं आप इस पे क्लिक करोगे. Now at the left hand side you can see that grades are coming. Change it to manual grading. Now it is converted to the manual grading. I have already graded, but still you can update the grades. So click on update grades. Local server पे नहीं चलेगा ध्रुव अगर try कर रहे हो तो. So I've already given the grades. ध्यान ये रखिएगा क्योंकि क्विज टाइप क्वेश्चन था तो 1 मार्क्स ही दिखेगा, बट एक्चुअली मार्क्स वो होंगे जो आपने क्वेश्चन बनाते वक्त दिए होंगे. तो आई हैव असाइंड 10 मार्क्स फॉर अ 1 क्वेश्चन, राइट. सो आई एम मॉडिफाइंग इट टू 1, व्हिच मींस कितने मार्क्स मिलने चाहिए स्टूडेंट को? 10 मार्क्स, पूरे मार्क्स. सो सेव हो गया. नाउ आई विल गो बैक टू द कोर्स अगेन एंड आई विल सी द ग्रेड्स. Earlier these were 5 marks, now I have changed to 10 marks. And automatically यहाँ पर टोटल भी स्टूडेंट का आ रहा है. सेम चीज स्टूडेंट को दिख रही है, सेम चीज आपको दिख रही है, राइट. सो बाद में देखेंगे इसको क्या करना है, हमें कैसे इंटीग्रेट करना है. सो अभी आपको ग्रेड शीट समझ में आ रही है. आई होप ये फिलहाल लोकल एलएमएस पे नहीं दिख रही होगी, बट क्लाउड पे मैं आपको दिखा रही हूँ. जब अपडेट हो जाएगा तो लोकल पे भी आपको ऐसे ही दिखेगा. ग्रेड टैब आ रहा होगा आपके में, दैट यू कैन वेरीफाई. सो आई होप कल हमने जो असाइनमेंट्स बनाए थे उनके इवैल्यूएशन हमें क्लियर हो गए हैं. तो आज के हम टॉपिक्स देखते हैं. आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं? सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टेक वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू क्रिएट द क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेट मैं आपको ट्रेनिंग के बाद सर्कुलेट कर दूंगी. सो इट इज अ फिक्स फॉर्मेट, राइट. देन हाउ टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द क्वेश्चन बैंक, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में आप एक तरीका तो ये है कि हर बार क्वेश्चन ऐड करते जाइए and after that you can download the question bank. Second thing, suppose you are a course coordinator and under you there are 5 to 6 teachers. So take the questions from all the teachers, create a question bank and upload it. So that is going to reduce your work, right? Second thing, we will see 3 type of quizzes: simple quiz, random quiz and parametric quiz. And after that we'll work on grade sheet. Time बचा तो मैं आपको मिनी प्रोजेक्ट बताऊंगी, अदरवाइज पीपीटी में है. It is very easy. You can do it by your own. चलिए, so let's start with the क्वेश्चन बैंक. ये आपके नॉर्मल एलएमएस पे हो जाएगा तो you can do it parallelly. स्टार्ट करें. So open your normal LMS login. Go to more. Select the question bank. Now suppose I wish to import the question bank, right? So first of all, let me show you what is the format of the question bank. This is the format of the question bank. And you cannot deviate from this format. यही format चलेगा और ऐसे ही spaces, ऐसे ही capital small का आपको ध्यान रखना है. So this format I'm going to share with you. Right? Okay, so I have created 2 questions. इनके numbering में change कर देती हूँ. This is question number 1. And see, this is question number 2. These are my 2 questions in my question bank. Let's create one more question so that आपको clear हो जाए.
So this question I have already created. So this is my question bank. So let's close it. वापस से अपने LMS पे आ गए. साइड में आपको एक क्वेश्चंस दिख रहा है जहां पर मेरा कर्सर है, उससे वहां पर इंपोर्ट चूज करेंगे. Now the first format will work, that is icon format. You have to select first format. बाकी सारे फॉर्मेट मैप नहीं है तो उनको कोशिश मत करिएगा ट्राई करने की. चूज अ फाइल. जहां भी आपका क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को चूज करिए. हाँ, नोटपैड. मैं अभी आपको ये करने के बाद शेयर कर दूंगी क्वेश्चन बैंक, तब आप लोग ट्राई कर लीजिएगा. अपलोड कर दीजिए इसे. नाउ द क्वेश्चन बैंक फाइल इज शोन हियर. इंपोर्ट दिस फाइल. Now it will show you how many questions it is going to be imported. So there are 3 questions I have created in the question bank. All 3 questions are there. Now continue. Now you can see that these questions are imported here. Now I'm sending this question bank to all of you. आप एक बार try कर लीजिए इसे. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही तो लिखे हैं मैंने. अभी दूसरी तरीका मैं बताती हूँ आपको. So I've sent the question bank to all of you. If you wish to try, you can try. Okay. Now इधर एक बार देख लीजिए. So once you have imported the question bank is created. Automatically all the questions will be there. Now suppose I have already a questions in the question bank and I wish to export them. Download करने हैं आपको वो questions. So question पे जाइए. Export option पे जाइए इस बारी. Again format आप same choose करेंगे because this is the format only which is mapped in the backend. अब यहां आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी. If there are various categories of the question. Export question to the file. It is downloaded. Right. So both options are there. If you have created the question directly on the LMS, you can download that. If you have not, then you can create it on a file and then you can import the question bank. So both things are there. You can do that. So the question bank is over. Now my questions are available. We'll move to the next thing. So again come to the question bank. आज हम question bank पे ही explore करेंगे. After that we'll create the quiz. Now second type of questions that we are going to create are called as parametric questions. What does it mean? Suppose there is a mathematical question, say calculate the area of a circle, right? And where you wish that if there are 100 students, 100 formats of radius should be created. Which means every student will get the radius value different so that they cannot copy it, right? So this type of questions we are going to create here. So for that, create a new question. पहले देखते जाइए. We'll give a 5-minute break. आप उसमें create करके देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा typical procedure है इसका. So there are 2 type of parametric questions that you can create. One is a simple parametric question and second you can create it multiple choice. So we'll see one by one both questions.
So if you wish to create a simple question, for example, I wish to calculate give the question that calculate the area of a radius, circle where the radius value equals to question mark. Now there are different radius value that is going to be generated and the student has to write the answer, correct answer, right? So for that, we will take the format calculated simple. क्वेश्चन का टाइप नोट कर लीजिए, कैलकुलेटेड सिंपल, एड. So I'm putting the question name. मैं 3 क्वेश्चन इंपोर्ट कर चुकी हूँ. So my question number is question number 4. Although इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So calculate value of y by using m. फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. x and c. So y is equal to mx plus c सपोज करिए हम सॉल्व कर रहे हैं. अब यहां ध्यान दीजिएगा, when you are writing the question, जो आपका x साइड का वेरिएबल है, which means जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है वो आपको एज इट इज लिखना है, जिसमें वैल्यू कैलकुलेट होकर के आनी है. जो राइट साइड पे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आप रैंडम जनरेट करना चाहते हैं, यू नीड टू राइट डाउन इन अ कर्ली ब्रैकेट्स, which means कितने पैरामीटर्स आप बना रहे हैं? 3 पैरामीटर बना रहे हैं, m, x एंड y, जिनकी वैल्यू आप रैंडम जनरेट करेंगे. which means हर एक यूजर को m का वैल्यू अलग दिखेगा, x का वैल्यू अलग दिखेगा और c का वैल्यू अलग दिखेगा. गॉट इट? अगर आप किसी वैल्यू को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो उसे पैरामीटर मत बनाइए, उसकी वैल्यू वहीं पर दे दीजिए. जिसको आप पैरामीटर बनाना चाहते हैं, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन द ब्रैकेट. अभी प्लीज नोट कर लीजिए, पैरेलली करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी चेंज होंगी. So once you have seen that how to create a question, it is done. Now नीचे की तरफ आइए, आपको मार्क्स कितने सेट करने हैं वो सेट कर दीजिए. तो जनरली क्विज में हम 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते हैं, तो फिलहाल मैं 1 मार्क्स कर रही हूँ यहाँ पे. Now what kind of answer you are expecting, right? तो अब आंसर बच्चा लिख करके आपको देगा, तो 2 तरीके हैं. या तो आप फॉर्मूला यहां पर लिख दीजिए, राइट, सो दैट स्टूडेंट शुड नो कि भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx और c की वैल्यू मुझे मिलेगी और ये फॉर्मूला लगा के मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दूसरा आप क्या करिए, और कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला हियर, उसी से वैल्यू आएगी. अगर बच्चे ने गलत फॉर्मूला लगाया तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो गलत आएगा. सो आई एम राइटिंग द करेक्ट आंसर हियर. सो m इंटू x, और प्लीज बोर्ड मास एक्सप्लेन कर लीजिए, मतलब अप्लाई जरूर करिएगा प्रेसिडेंस. m इंटू एक्स आपको एक साथ करना है, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा एंड देन प्लस c करिएगा. सो आई थिंक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन बोर्ड मार्क्स, आपको पता ही है, तो वो रूल जरूर अप्लाई करिएगा, राइट. मैंने ये करेक्ट फॉर्मूला लिख दिया. जिसने भी करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया होगा उसका आंसर मैच करेगा, जिसने नहीं करा होगा उसका आंसर गलत होगा. अब क्योंकि ये करेक्ट आंसर है तो ग्रेड वाले पर आइए एंड इसको 100% कर दीजिए. याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट ये नन आएगा, आपको इसे 100% करना है. अगर 100% नहीं करेंगे तो मार्क्स असाइन नहीं होंगे. डेसिमल प्लेसेस आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए इसे. एक बार मैं फिर से दिखा रही हूं, मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन में जितनी रैंडम वैल्यू मुझे चाहिए थी, आई हैव मेंशन्ड देम इनटू द कर्ली ब्रैकेट्स. आई हैव रिटन द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द आंसर, made the grade as 100% because it is the correct answer. Now the next setting, 2 सेटिंग हमारी हो चुकी हैं, अब हम नेक्स्ट सेटिंग पर आ गए. मेक अ वाइल्ड कार्ड वैल्यूज, ये जो ब्लू कलर में आ रहा है मल्टीपल ट्राई के नीचे, क्लिक ऑन दिस. जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर एक ऑप्शन क्रिएट हो गया, वाइल्ड कार्ड पैरामीटर्स, इसको ओपन कर लीजिए. नाउ देयर आर 3 पैरामीटर्स क्रिएटेड हियर. एक x क्रिएट हो गया है, एक c क्रिएट हो गया है और एक m क्रिएट हो गया है. ठीक है, ये ऐसे आ रहा था,
इसको मैंने एक्सपेंड करा, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स क्रिएट हो गए हैं। ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपने कर्ली ब्रैकेट्स में दिए थे। नाउ सपोज करिए मुझे m की वैल्यू चाहिए 2 से लेकर के 5 के बीच में, ठीक है। एक्यूरेसी आप अपने हिसाब से डेसिमल की सेट कर लीजिएगा, आई एम नॉट टचिंग इट। x की वैल्यू मुझे टच नहीं करनी है, वो मुझे x 1 से लेकर के 10 के बीच में चाहिए। और जो c की वैल्यू है वो मुझे 4 से लेकर के फॉर एग्जाम्पल 50 के बीच में चाहिए, ठीक है। आई हैव changes the range of all the values, all the parameters. Now I'm generating the set. मैं 10 random values generate करके देख रही हूँ, generate. जो आपने values generate करी हैं, if you wanted to verify, तो display पर 10 values कर दीजिए and display it. वाइल्ड कार्ड values में जाइए, ये देखिए आपके 10 सेट तैयार हो गए हैं, उससे रेंज भी आ गया आंसर। हाँ, ठीक है। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया एज अ टीचर। सेव चेंजेस। ना क्वेश्चन 4 इज क्रिएटेड। अब एक तरीका तो ये है अपना रोल चेंज कर लीजिए और क्विज बना लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं से प्रीव्यू देख लीजिए, ये क्वेश्चन स्टूडेंट को कैसे दिखेगा। So if you will add this question in the quiz, the student will see the question like this. तो अब यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इसे फॉर्मूला भी पता होना चाहिए एंड इन वैल्यूज को पुट करना भी आना चाहिए। जो भी करेक्ट आंसर निकलेगा वो यहाँ पर लिखेगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं लिखेगा तो 0 असाइन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो डू यू विश टू क्रिएट, शुड वी टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स और दूसरे पे चली जाऊं मैं, मल्टीपल चॉइस आपको बताऊं? हाँ ना, okay, multiple choice. Fine. So next type of question parametric that we are going to create is a multiple choice. So again create a question. At this time the option should be calculated multi-choice. पिछली बार आपने क्या लिया था? Calculated symbol. This time your choice will be calculated multiple choice. Add. आप लोग बाद में ट्राई कर लीजिएगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर मैंने यहां स्पेसिफाई कर दिया 5। फाइन। सो नाउ अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूं। कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्किल वेयर रेडियस इज इक्वल टू, इसको मुझे पैरामीटर में रखना है r, तो मैंने किस में दे दिया उसे, कर्ली ब्रैकेट में दे दिया। डिफॉल्ट मार्क्स मैंने 1 ही सेट करे हुए हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है तो आप यहां शफलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। सही, नंबर ऑफ चॉइसेस एंड शफल द चॉइसेस पे मैंने टिक करा हुआ है। अगर आप इसे हटा देंगे तो जो चॉइस आप सेट करेंगे सीक्वेंस में वही चॉइस मिलेगी। तो जनरली यू कैन क्लिक ऑन शफल। सेकेंड थिंग, अभी आप मल्टीपल चॉइस बना रहे हैं विद 1 आंसर। अगर आपको मल्टीपल आंसर बनाना है तो मल्टीपल आंसर अलाउड पे क्लिक कर दीजिएगा। सो रेडियो बटन की जगह आपको चेक बॉक्सेस मिलने लगेंगे। तो फिलहाल हम 1 आंसर पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको रेडियो बटन्स मिलेंगे। ओके, अब मैं चॉइस नंबर 1 बनाने जा रही हूं। सो मैंने पहला फॉर्मूला चॉइस नंबर 1 का लिखा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर। मतलब चॉइस में मैं फॉर्मूला भी गलत दे सकती हूँ एंड फॉर्मूला सही भी दे सकती हूँ। क्योंकि ये चॉइस रॉन्ग है तो ग्रेड में नन रखिएगा। अब मैं चॉइस नंबर 2 बना रही हूं। सपोज इट इज अ करेक्ट चॉइस, तो आप ग्रेड को 100% सेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक चॉइस और बना लेते हैं। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग चॉइस, तो मैंने ग्रेड को नन सेट कर दिया है। अब आप नीचे की तरफ आ जाइए। सबसे पहले इसमें सेव चेंजेस कर लीजिए। याद रखिएगा पिछली बार वाले में नीचे जाकर के यू वर सेटिंग दी वाइल्ड कार्ड, यहां पर आपको वाइल्ड कार्ड नहीं मिलेगा।
आप सेव चेंजेस कर लीजिएगा। आपने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन के चॉइसेस बनाए, आफ्टर दैट यू सेव्ड इट। नाउ वंस यू विल सेव दैट क्वेश्चन, देन यू विल गेट द चॉइसेस ऑफ वाइल्ड कार्ड, राइट? और यहाँ चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी आपको। तो सेकंड वाला जो लिखा हुआ है मैंडेटरी वाइल्ड कार्ड प्रेजेंट इन द आंसर, यहाँ वाले ऑप्शन पर आइए। यू विल गेट टू चॉइसेस, प्राइवेट डेटा सेट एंड अ न्यू डेटा सेट। तो आप फिलहाल प्राइवेट डेटा सेट पे क्लिक करिएगा एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट पेज। ठीक है। नाउ बाय डिफॉल्ट आपको एक यहां पर वैल्यू क्रिएटेड मिलेगी, आपको ये वैल्यू चेंज करनी है। तो मुझे रेडियस की वैल्यू रखनी है इससे 2 से लेकर के 15 के बीच में। अब जब आपने ये कर लिया तो करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, फोर्स जनरेशन ऑफ ऑल वाइल्ड कार्ड्स। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, पहले रेंज को चेंज कर दीजिएगा। आफ्टर चेंजिंग द रेंज आप फोर्स जनरेशन ऑफ ऑल वाइल्ड कार्ड पे क्लिक करिएगा एंड गेट अ न्यू आइटम, राइट? आपकी अब रेडियस की रेंज क्या हो गई जो आपने सेट करी है। तो मैंने सेट करी है 2 से लेके 15 के बीच में मेरी रेडियस जनरेट होनी चाहिए। अब मुझे रैंडम वैल्यू उसके बीच में मिलेगी। सेम थिंग आप डेटा सेट को जनरेट करके देख सकते हैं। तो मैं 10 आइटम्स जनरेट करके देख रही हूँ मिनिमम एट। इस बार मैं 10 में से एक आइटम आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आप और आइटम्स देखना चाहते हैं, इसे मैं 2 डिस्प्ले करवा के देखना चाहती हूँ, तो तीनों चॉइसेस के मेरे को 2 आंसर दिखेंगे। एक सेट दिख रहा है, 2 सेट दिख रहे हैं मुझे, और तीनों चॉइसेस के आपको डेटा सेट दिखेंगे। Now if you're satisfied, save the change. If you're not satisfied, again change the range. So let's see the question number 5 preview. कि आपको कैसा दिखेगा। So this is the preview of question number 5. So if I'll choose the correct answer, suppose ये correct answer है, आप submit करेंगे, so it is your correct choice. आप किसी गलत पे क्लिक करेंगे तो आपने ग्रेड नन दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े और यू वांट टू क्रिएट अ पैरामीट्रिक क्वेश्चन? हाँ ना भाई, सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ब्रेक, आप बना करके देख लीजिए। अच्छा एक और चीज, डू नॉट ट्राई टू ऐड द क्वेश्चंस ऑफ पैरामीट्रिक इन द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक नहीं बनेगा पैरामीट्रिक क्वेश्चंस का, वो आपको इंडिविजुअली बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस का बना सकते हैं। ठीक है। आइटम आ जाएगा ना, आइटम ऐड कर लीजिए, रेंज को चेंज कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम बनाए तो मुझे लग रहा है हम शायद क्वेश्चन बैंक ज्यादा यूज So depends on that experience. अगर कहीं constraint नहीं है, बिना इसको ग्रोथ नहीं हो काम की वाली Anyone who has left for
signature. So next year Yes, sir. range set कर दी मैंने अपनी तरफ से Add item. नीचे वाला 4 division होगा। Try कर लो. Hello. इसकी आगे नेक्स्ट पेज पर This is correct. Replace data with the ऊपर देखो नंबर आइटम कितने हैं कोई जल्दी 1 या 5 जल्दी करना कि कनेक्टिविटी कितने थोड़ा ऑन और कोई बचा? डिस्प्ले के साथ सेव तो ऑप्शन भी है लेकिन कर दी और डिस्कशन क्या कर रहा है मल्टी चॉइस करेगा नंबर 5 ये रहा सबसे ऊपर आ कोई बड़ा वाला बस सही है इसमें यहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं है एलएमएस सर्वर का इशू है चलिए, so we are moving ahead. So now as the question bank is already ready, so we are going to create the quizzes now. So two type of quiz we are going to create. One is a simple quiz, another is a random quiz. So for that, make sure आप edit mode में हो. Create, add the activity. And the activity should be quiz. So I have set the name of the quiz, that is quiz 1. After that, you can set the timings of the quiz. So I'm setting it to 11. Set the close timing of the quiz. Okay, one more thing. मैं timing थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ. But the quiz attempt, once the student has started the quiz, he will get only 10 minutes. मैंने quiz का time चाहे 1 घंटा set कराओ, चाहे 2 घंटा set कराओ. If I'm setting this time limit, तो once the attempt has started, it will be there only for 10 minutes. 10 मिनट के बाद quiz अपने आप बंद हो जाएगी उस student के लिए.
क्लियर ये ऑप्शन? अदरवाइज अगर आपको ये ऑप्शन पसंद नहीं है तो आप यहां पर रख दीजिए 10 मिनट। उस केस में ये होगा कि उतनी देर क्विज चलेगी। अदरवाइज मैंने 1 घंटे के लिए शेड्यूल करी, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए मैंने टाइम लिमिट सेट कर दी कि वो 10 मिनट ही उस क्वेश्चन को, उस क्विज को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आपको जो ऑप्शन सही लगे आप वो रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, क्विज कब एक्सपायर होगी और सबमिशन का क्या होगा, उसके लिए ये डिफॉल्ट रखिएगा, ओपन अटेम्प्ट्स विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली। उससे क्या होगा, अगर स्टूडेंट आपसे कंप्लेन नहीं करेगा कभी भी कि मैं तो सबमिट नहीं कर पाया, अगर ओपन है क्विज तो अपने आप सबमिट हो जाएगी टाइम खत्म होने के बाद। आपको ग्रेड्स वगैरह में कोई चेंज नहीं करना है, रिव्यू में चेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा, रिव्यू में चेंज करना है आपको। ग्रेड्स इज नॉट इन योर हैंड, क्योंकि वो क्विज के क्वेश्चन से आएंगे ग्रेड्स। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है ड्यूरिंग द अटेम्प्ट आपको नंबर दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं। अगर नहीं दिखाने हैं तो इसको अनटिक कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट। अब उससे नुकसान क्या होगा, आपने अटेम्प्ट सबमिट करा, एक स्टूडेंट को पता चल गए ऑप्शंस, दूसरे को ऑप्शन बता देगा वो, तो जस्ट अनटिक कर दीजिए। इट इज टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है। लेटर व्हाइल द क्विज इज स्टिल ओपन, तो इसको भी अनटिक कर दीजिए। आपको नंबर और ऑप्शन तभी दिखने चाहिए जब क्विज बंद हो गई है, तो आप इसे टिक रहने दीजिए। एंड इट इज अप टू यू, आपको क्या रखना है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रही हूं, आप क्या कर सकते हैं। सो रिव्यू में केवल लास्ट ऑप्शन इज एडवाइजेबल टू टिक, रेस्ट ऑल द ऑप्शन शुड बी अनटिक। हो गया? ओके, नाउ यू कैन कम फॉर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। सपोज मैं चाहती हूं कि कोई भी स्टूडेंट क्विज तभी अटेम्प्ट कर पाए जब उसने प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट करा हो और उसमें उसको पासिंग ग्रेड मिले हो। तो एट द रिस्ट्रिक्शन, कम टू द ग्रेड। सो देयर आर वेरियस असाइनमेंट। से मैंने कहा ओपन बुक अगर तुमने दिया होगा और उसमें नंबर 5 आए होंगे, greater than equals to 5 आए होंगे, then only you can attempt the quiz, otherwise you will not allow to attempt the quiz. If you wish to apply the restriction, apply. If you don't want to apply, just leave it. आपको नहीं करना है तो इसे हटा दीजिए। क्लियर? सो I'm deleting it. फिलहाल मैं कोई restriction नहीं डाल रही हूँ, वो आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। Now save and return to the course. क्विज अभी बनी नहीं है, सिर्फ टेम्पलेट क्रिएट हो गया है क्विज का। रोहित के ओके, नाउ क्लिक ऑन द क्विज। जो आपने टेम्पलेट बना लिया है आप उस पर वापस से क्लिक करिए। बस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन। ओके, अब देयर आर 2 ऑप्शंस। 2 टाइप के क्विज आप एक ही जगह से क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्विज, पहले तो मैं शफल पे क्लिक कर रही हूँ, विच मीन्स अगर आपने एक ही सेट देना है सारे स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन शफल्ड मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्विज में 10 क्वेश्चन देना चाहती हूँ, सो एवरी स्टूडेंट विल गेट शफल्ड क्वेश्चंस। दूसरा तरीका क्या है, आई हैव 100 क्वेश्चंस एंड मैं हर एक को 10-10 क्वेश्चन देना चाहती हूँ और वो सेट अलग अलग आने चाहिए। सो दोनों क्विज हम यही बना करके देख रहे हैं। तो पहली मैं सिंपल क्विज बना रही हूँ, 10 फिक्स क्वेश्चन है या 5 फिक्स क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को मिलने चाहिए और शफल्ड फॉर्म में मिलने चाहिए। तो पहले तो मैंने शफल पे क्लिक कर दिया, देन क्लिक ऑन ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। अब आपको जो जो क्वेश्चन देने हैं सारे क्वेश्चन बैंक के दिख रहे हैं, आपको जो जो ऐड करने हैं क्विज में उन पे टिक कर दीजिए।
and then add the selected questions to the quiz. क्विज में ये क्वेश्चंस शफल फॉर्म में ऐड हो जाएंगे, बट ध्यान ये रखिएगा यही 3 क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को दिखेंगे. मे बी क्वेश्चन 3 किसी को क्वेश्चन 1 दिखे, बस इतना ही चेंज होगा. सो इट इज अ सिंपल क्विज. अब मुझे रेंडमली देनी है क्विज. सो ऐड पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन रैंडम क्वेश्चन. पूरा क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट हो जाएगा. यहां आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि आपको क्वेश्चन खुद सेलेक्ट करना है. द होल क्वेश्चन बैंक इज सेलेक्टेड. नाउ यू जस्ट गिव हाउ मेनी क्वेश्चन वन स्टूडेंट शुड सी. So I said in my quiz 3 questions will be there for a single student. Add the random question. Now every student will get 3 questions, but कौन से 3 वो पता नहीं है. So every student will get different 3 questions. So 2 type of quiz you can create: simple quiz and random quiz. And type of questions I have already told you, it can be multiple choice, it can be parametric questions. कोई भी क्वेश्चन उसको दिख सकता है वहां पर. So फिलहाल मैंने रैंडम क्विज बना दिए. सीमा मैम आपको क्विज दिख रही होगी. देखिए 3 क्वेश्चंस आ गए आपको. नाउ लास्ट ऑप्शन हम दिखाने जा रहे हैं आपको ग्रेडिंग वाला. एक बार अटेम्प्ट हो जाने दीजिए क्विज, देन आई विल शो यू हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द ग्रेड्स. नहीं दिख रही है क्विज? लैपटॉप पे काम कर रही हो? सुनील सर आप कहाँ कर रहे हैं? लैपटॉप पे ही कर रहे हैं. कोई ऐसा है जो सिस्टम पे काम कर रहा है? प्रिया कहाँ काम कर रहा है? कर ही नहीं रहा. आ गई? हाँ, रेंडमली कुछ भी अटेम्प्ट कर लेना. 3 क्वेश्चन देखेंगे. Nothing is compulsory here. छोड़ दो, बैक एंड ठीक कर रहे होंगे वो. चलिए मैं आपको ग्रेड्स दिखा रही हूँ. आप सो बेसिकली ग्रेड्स पर आप जाएंगे तो आपके पास जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके ग्रेड्स यहाँ दिख रहे होंगे. बल्कि मैं आपको क्लाउड पे दिखाती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा. सो 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के यहाँ पर आपको ग्रेड्स दिख रहे हैं. ठीक है. नाउ सपोज करिए किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट मैनुअली दिया है आपको, एलएमएस पे नहीं दिया. अब आपको उसके नंबर अपडेट करने हैं, या आपने कोई पर्टिकुलर कॉलम है या पर्टिकुलर असाइनमेंट है जिसके के सारे इवैल्यूएशन मैनुअली किए हैं, एलएमएस पे उसके नंबर नहीं है. अब आपको वो नंबर एलएमएस पे लेके आने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एलएमएस से आईएनएक्स पे जाएंगे. राइट. सो हाउ यू विल डू दैट? तो फर्स्ट मैं आपको डाउनलोड करना बता रही हूँ, उसको एडिट करेंगे एंड देन अपलोड करेंगे. सो फॉर दैट ये जो भी नंबर्स हैं ये मुझे डाउनलोड करने हैं. ग्रेडर रिपोर्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट द ग्रेड्स. ग्रेडर रिपोर्ट जो कॉर्नर में थी वहां पर मैंने एक्सपोर्ट सेलेक्ट करा है. सेलेक्ट दी ऑप्शन, आपको किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है. मैंने यहां पर सेलेक्ट करा है एक्सेल स्प्रेडशीट. मैं फिर से बताऊं या क्लियर है? पीपीटी में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. अब आपको तीनों असाइनमेंट अगर डाउनलोड करने हैं तो तीनों पे टिक करिए. अगर नहीं करने हैं तो जिसको नहीं करना है उस पर अनटिक कर दीजिए. तो मुझे टोटल नहीं चाहिए, सिर्फ असाइनमेंट के नंबर चाहिए. मैंने असाइनमेंट के नंबर्स पर टिक करा. डाउनलोड इट. दिस इज डाउनलोडेड.
तो फिलहाल आपकी एक्सेल शीट ऐसी आ रही है. दिस इज योर एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में आपको जो कॉलम नहीं चाहिए, यू कैन डिलीट दैट कॉलम व्हाइल अपलोडिंग. मैं इसी को अपलोड करूंगी दोबारा, तो मुझे जो कॉलम नहीं चाहिए था मैंने वो डिलीट कर दिया. अब यहां पर नंबर नहीं है, ये मैंने मैनुअली सपोज करिए इवैल्युएट करिए, मैं यहां नंबर दे दिए 5. फिलहाल ये टेक्स्ट फॉर्मेट है तो कन्वर्ट टू नंबर कर लीजिएगा इसे. नाउ माय ग्रेड शीट इज रेडी. अब आपको एक ध्यान रखना है, इसको सेव एज करना है CSV फॉर्मेट में. अपलोड करते वक्त योर ग्रेड शीट शुड बी इन अ CSV फॉर्मेट. तो मैं इसको सेव एज कर रही हूं CSV फॉर्मेट में. डन. अब इसको अपलोड करके देखते हैं. सो आई एम इंपोर्टिंग इट. इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए. बस यहां पर थोड़ी सी मैपिंग है, उसको ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी फाइल आपको इंपोर्ट करनी है. So I have selected my CSV file. Now upload the grades. अब यहां पर आपको ग्रेड्स दिख रहे हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली अपलोडेड. ये आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है. अब यहां आपको मैपिंग करनी है. सो यू नीड टू सेलेक्ट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर. तो जनरली स्टूडेंट के केस में आपको रोल नंबर या सैप आईडी मिलेगी. फिलहाल मेरे केस में मैं ईमेल आईडी से मैप कर रही हूँ, बिकॉज एवरी यूजर हैज यूनिक ईमेल आईडी. तो मैं ईमेल आईडी एज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ले रही हूं. याद रखिएगा, मैपिंग करते वक्त आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करना है. तो स्टूडेंट के केस में इट शुड बी ERP आईडी और रोल नंबर. ओके. अब मैपिंग में कौन सा असाइनमेंट किस नंबर से मैप करना है. सो असाइनमेंट रूब्रिक असाइनमेंट 1 आई एम मैपिंग विद रूब्रिक असाइनमेंट, एंड रैंडम असाइनमेंट आई एम मैपिंग विद रैंडम असाइनमेंट. ये मैपिंग करनी भी जरूरी है, वरना नंबर हाफिजर चढ़ जाएंगे. फिर से दिखा रही हूं मैं आपको. यहां पर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है. आप इसे इग्नोर मार सकते हैं, ऑटोमेटिकली मैप हो जाएंगे. बट जहां पर आपको मार्क्स मैप करने हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट फील्ड. यहां अगर आपने गलत फील्ड सेलेक्ट करी तो दूसरी फील्ड के मार्क्स यहां पर चढ़ जाएंगे. अपलोड द ग्रेड्स. कंटिन्यू. ग्रेड शीट इज डन. So once you are done with your grade sheet, आपको बाद में जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो आपको INX पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा. एंड देयर ऑल्सो यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा कंपोनेंट आप INX पे डालना चाहते हैं. अब वो कब आएगा, कैसे आएगा, आई हैव नो आइडिया. मैंने आपको ग्रेड शीट बनानी बता दी है कि आप LMS पे कैसे बनाओगे. So let's all things are over. So we are taking 5 minutes. अगर कोई queries हैं तो बताइए, otherwise we are over with the training. Thank you so much. में तो इनपुट का ऑप्शन नहीं आ रहा है. मैम जब तक ग्रेड्स दिए नहीं होंगे शायद तब तो